Can any one of you tell me कि what is your strategy? Just let me know कि आप कैसे सोचते हो कि कैसे अप्रोच ले. Anyone? So it is combined exam basically, है ना? Assistant geologist और assistant hydro वो combine होगा. And anyone? Just आप लोग कैसे सोच रहे हैं कि कैसे अप्रोच ले? What is your method? Only PIQ? Exactly. Now, exactly. If you have completed the UPSC GSI prelims plus mains, then don't worry about those assistant geologist and assistant hydrogeologist examination. If you don't study, because 30 day पे आप कुछ complete नहीं कर पाओगे ज़्यादा, है ना? So this is the time for revision only. Revision और PYQ सॉल्व करो. मैं PYQ को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूँ क्योंकि PYQ अब अगर सॉल्व करते हो तो यूपीएससी ट्विस्ट करता है, हर बार ट्विस्ट करेगा. ठीक है, तो इससे बेहतर कुछ अच्छा वाला पढ़ के जाओ कंटेंट, सो दैट यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स एंड टारगेट एटलीस्ट 200 प्लस मार्क, 200 प्लस और 180 से लेके 210. दिस इज अ रियली गुड स्कोर आउट ऑफ 300 मार्क. Okay, so this is all about the mark. You have to secure 180 से 210. ऐसे पहले से टारगेट मत करके जाना, है ना, कि मुझे 180 आई हैव टू सिक्योर 180 to 200, because it depends also ना कि what type of question arised in examination hall, whether the cutoff will be higher or cutoff will be lower depending upon the examination. ठीक है, क्वेश्चन कैसे आया था. So don't target, but thing is you have to attend maximum question. Try to avoid simple things, negative mark, and try to secure maximum mark. This is has to be your strategy, not like ऐसे 180 से 210 करना है मुझे, नहीं. It depends also कि क्वेश्चन कैसा आता है, whether the question will be the higher side or like lower side. Now let's go to the scheme of the test. You already know the test will be the 2 hour. All question carry equal marks. Like maybe 120 क्वेश्चन आ सकता है, maybe 150 क्वेश्चन आ सकता है. अगर 120 क्वेश्चन आएगा then approximately 2.66 mark. अगर 150 क्वेश्चन आएगा then approximately 2 mark, because like the test will carry a maximum 300 mark. Okay, and negative will be 1/3 of the जितना मार्क allotted है, like 1.33 into 2.6, approximately 0.83 mark. and 2 mark अगर होगा then it approximately 0.66 mark, because 1/3 of 2 mark. Okay, इंग्लिश पे क्वेश्चन होगा and penalty of wrong answer बता दिया था. Every wrong answer will carry deduction of the 1/3 of the mark assign. जितना मार्क असाइन हुआ है, सपोज 2.66 मार्क असाइन हुआ है, देन उसका 1/3 मतलब 0.83 मार्क. अगर वो 2 मार्क असाइन हुआ है देन 1/3 ऑफ दिस मतलब 0.66 मार्क नेगेटिव. ओके, सो बी कॉशियस अबाउट दिस नेगेटिव मार्क, ट्राई टू अवॉइड. ओके, लेट्स गो टू द सिलेबस ऑफ द टेस्ट. मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम टॉपिक पूछ लिया. ओके, whatever is given in the UPSC GSI मेंस एग्जामिनेशन, है ना. जैसे मान लो टोटल 4 पेपर होता है ना. पेपर 1 इज देयर, पेपर 2 इज देयर, पेपर 3 इज देयर, राइट. पेपर 3 एंड हाइड्रो पेपर इज देयर. सो पेपर 1 पे 5 टॉपिक रहता है, पेपर 2 पे 5 टॉपिक, पेपर 3 5 टॉपिक इज देयर. सो अप्रोक्सीमेटली यू कैलकुलेट कि ऑलमोस्ट यूपीएससी जीएसआई मेंस का ही टॉपिक पूछ लिए. ठीक है, so geomorphology is there, tectonics and crustal evolution, that means geodynamics is there, mineralogy there, and यहाँ पे देखो सिंपल थिंग, मिनरोलॉजी दिया हुआ है लेकिन इज नॉट गिवन क्रिस्टलोग्राफी.
बट क्रिस्टलोग्राफी से क्वेश्चन आएगा. सिंपल थिंग्स. यूपीएससी डज नॉट स्पेसिफाई प्रॉपर थिंग्स. सिंपल. जैसे मान लीजिए आप अगर इसी साल जीएसआई मेंस सॉरी प्रीलिम्स दिए हो गए, one question is there from the metamorphic reaction and the release of the H2O when Moscovite breakdown reaction, right, give rise to water. So this is from the metamorphic reaction topic, but metamorphic reaction is not given in the UPSC GSI prelim syllabus. So there is no point of view of asking such type of question. Simple things. So mineralogy दिया हुआ है, you have to study crystallography like crystal symmetry, 32 classes, tuning, है ना, ये सब पढ़ना होगा आपको. Then igneous petrology is there, sedimentary is there, metamorphic is there, structural geology is there, stratigraphy, paleontology is there, remote sensing, GIS is there also, hydraulic geology. So this is all over like broad topic. तो उसमें से आपको क्या पढ़ना होगा in few times like 30 days remaining. मेरा सजेशन यही होगा, ठीक है, ट्राई टू मैक्सिमम चैप्टर कवर करने के लिए, नॉट होल. बिकॉज सोचो कि आप सारे टॉपिक 19 टॉपिक पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, अगर 10 टॉपिक आंसर दे रहे हो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टडिंग ऑल दोस थिंग्स. तो इससे बेहतर ना 10-12 टॉपिक पढ़ के जाओ, लेकिन सॉलिड पढ़ के जाओ. ठीक है, सपोज लाइक सेट पढ़े हो ना, suppose this set and this is the subset, you have to study this portion, not like this portion. इसको छोड़ो, you have to complete first this portion only. ठीक है, so try to finish the maximum chapter like 12-13 chapter पढ़ लो. I will suggest last पे paleontology को छोड़ो because this is very literature and like there are lot of to memorize those things. paleontology का simple पढ़ के जाओ जितना हो पा रहा है. Because what happens is if you like attend in the GSI examination, in the examination hall you will see like out of the box question, है ना. जैसे मान लीजिए पैलियो बॉटनी से क्वेश्चन आ गया, देन ये गलत है, राइट. यूपीएससी GSI जो क्वेश्चन बनाता है ये गलत है. यू हैव टू स्पेसिफिक और यू हैव टू मेंशन के पैलियो बॉटनी से क्वेश्चन आएगा. पैलियो बॉटनी इज इन योर सिलेबस, राइट. सो सिलेबस पे मेंशन किए हो गोंडवाना, फ्लोरा एंड फौना, बट you are asking about the paleobotany, all those things. Okay, so remote sensing, geochemistry is there, mineral exploration is there, right. Economic geology, engineering geology is there, environmental geology, and all those seismology part is there. So this is all about the seismology, earthquake geology and seismotectonics. So marine geology is there, that means the oceanography part. Okay, GIS, geoinformatics is there, and hydrogeology is there. इतना तक किसी का डाउट है then you can ask me if you have any doubt or any question arising in your mind. Any question till now or all clear? I'll move. Okay, great. So then first then gradually we'll discuss कि कैसे अप्रोच लेना पड़ेगा आपको, because like time is less, 30 days only remaining. You have to be specific in your topic so that you can, simple things, आपको PhD नहीं करना है, simple, achieve more, right, secure more marks. You have to study in this way, or like every examination you are appearing you have to read in this way that you can secure more marks. आपको marks लाना पड़ेगा ज़्यादा, simple things. So you have to be specific with your topic, right. You have to specific your topic कि क्या पढ़ना चाहिए आपको और क्या छोड़ना चाहिए. That should be your motive, है ना. जैसे geomorphology बहुत कुछ है, there are lot process geomorphology is there, right. There are lot of landform, like lot of model is there to formulate like geomorphology. ठीक है, landscape evolution is there, lot of things are there in the geomorphology. मॉडलिंग इज देयर, जो मॉर्फोलॉजिकल मॉडलिंग इज देयर. ठीक है, सो यू हैव टू स्पेसिफिक जो जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम. ठीक है, जैसे मान लो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मेटिज्म यू कैन गेट इन द GSI, also in the assistant geologist examination you can get such question. concept of landscape evolution is there, and model से ज्यादा क्वेश्चन आता है. concept and model it is really important. ठीक है, जैसे पेंट मॉडल हो गया, ठीक है, एक्चुअल इज इन प्रोसेस मॉडल, ठीक है,
catastrophes in model, ठीक है. These are all the geomorphological processes given by scientists through the model, है ना. Then chemical weathering and soil formation, this is a really important topic. ड्रेनेज बेसिन मॉर्फोमेट्री, ठीक है. जैसे मान लीजिए ड्रेनेज पैटर्न आ सकता है, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, ठीक है. आई ऑलवेज सजेस्ट कि ब्रॉड वे में प्रिपेयर करो ताकि आपका जो इजी टाइप का क्वेश्चन वो हो सकता है. न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछता है. इफ यू सी द लास्ट प्रीवियस ईयर एस्ट्रोनॉमोलॉजिस्ट क्वेश्चन, देन देयर आर लॉट ऑफ न्यूमेरिकल, लाइक 10 question I think from the numerical only, right? So जैसे drainage density, drainage frequency, all those, like those parameter are there for the calculating of the watershed, है ना. These are the drainage basin morphometric processes, ठीक है. Major processes associated with landform like fluvial, aeolian, coastal process, karst and glacier. मैं यही बोलूंगा, fluvial, एओलियन, इसको डबल स्टार लगाओ, इसको अच्छे से पढ़ के जाओ. फ्लूवियल एंड एओलियन. अगर टाइम है देन कोस्टल, कास्ट एंड ग्लासियल पढ़ो, ठीक है. पहले इंपोर्टेंस किसको दोगे? एओलियन को. सेकंड प्रेफरेंस बता रहा हूं फ्लूवियल को. थर्ड प्रेफरेंस बता रहा हूं ग्लासियल. ट्राई टू कवर दिस पार्ट फर्स्ट, ठीक है. अगर टाइम मिल रहा है देन गो थ्रू दिस. कास्ट जा सकते हो, कोस्टल जा सकते हो, ठीक है. दोज रिमेनिंग पार्ट. ओके. एनी डाउट फ्रॉम द जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट? एनी डाउट यू कैन आस्क. दिस इज यू हैव टू स्टडी. वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, ठीक है. प्लीज स्टडी दिस, स्पेसिफिकली केमिकल वेदरिंग पार्ट. Okay. Any doubt? You can ask me. Are you comfortable in Hindi, right? Or any, like, you are facing any issue? English and Hindi will be fine, right? Okay, that's great. So this is like fundamental approach from the James Hutton. James Hutton uniformitism दिया था, ठीक है. Same physical process and laws that operated today जो ऑपरेट पास में हुआ था, सो अभी भी प्रोसेस ऑपरेट हो रहा है, बट डिफरेंट इंटेंसिटी और डिफरेंट रेट, ठीक है. सो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज डोमिनेट कंट्रोल. सो दीज आर द ऑल द मॉडल गिवन बाय दोज साइंटिस्ट. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द जीएसआई प्रीलिम्स, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट, ठीक है. दिस इज नॉट द क्लास फॉर द, लाइक, I will explain all those things like informatism process क्या है, actualism process क्या है. So this is the class of like strategy, how to approach, what to study and what to not study, right? Any doubt? Okay, that's great. So same as these are the Davis model, Davis cycle of erosion, then a Penck model is also there. You have to go through this, right? You have to go those type of model and all those processes you have to study, right? And yeah, so this is a really important table, important कि humid tropical like morphoclimatic zone in the world, like उसका annual precipitation कितना होना चाहिए, उसका annual temperature कितना होना चाहिए, and all those important geomorphic processes क्या है, ठीक है. whether these humid tropical region, the rate of chemical weathering will be the higher or lower side, right? So this is really important. जैसे dry continental environment पे क्या होगा, what is the process and what is the mean annual precipitation. So this is really important, right? And this is the worldwide morphometric zone. So this is not the class. In the coming class I will describe more, because I will upload almost like 30 or 20 lecture, because right now I am busy, but I hope 20 to 30 lecture upload कर दूंगा assistant geologist के लिए. Because what happens is like I am interested to taking the live classes, but student is not joining right now.
आई डोंट नो, ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई प्लान टू अपलोड द रिकॉर्डेड क्लास. जैसे मान लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जियोमॉर्फोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको अपलोड करूंगा ताकि यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क एंड मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट थ्रू दोस वीडियो, ठीक है. सो पेरिग्लासियल एनवायरमेंट कौन सा वाइल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ह्यूमन ट्रॉपिकल रीजन कहाँ है, ट्रॉपिकल वेट ड्राई रीजन क्या है. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड वही बोल रहा हूँ. नाउ द ट्रेंड हैज बीन ग्रेजुअली चेंज्ड. जैसे मान लीजिए असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट फैक्ट बेस्ड दे सकता है, एनालिटिकल बेस्ड दे सकता है ना, थ्योरी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल दे सकता है, कोई कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है. Those who are speaking is really like dumb. You cannot like expect कि ऐसे क्वेश्चन आएगा. You cannot expect simple things. न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछ सकता है. अगर पिछले साल के क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल आया था, दिस साल न्यूमेरिकल is not there, right? So you cannot predict the UPSC, right? Simple things. So these are the some of the question from the assistant geologist. So इसका मतलब ये देखो ना. So this is I have already posted. This is community section. देखना. So this is the triangle, right? Sand supply, vegetation, है ना. There are different type of dune depending upon the sand supply, wind parameter or wind intensity and the vegetation cover. So I have already posted in the community section. तो उसी से क्वेश्चन आया था. So transverse dune है, Barchan dune है. So depending upon the vegetation and sand supply, ठीक है, and the wind strength, ठीक है. So those parameter we can classify different type of dune. So these are the longitudinal dune, Barchan dune, transverse dune, stark dune. Match the following question पूछा है. And this question you have seen. So this is the model question, simple question from the geomorphological model. Like positive feedback is there, negative feedback is there. This question from the geomorphological model. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ geomorphological model is a really important topic for the UPSC. इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट साल आपको जियोमॉर्फोलॉजिकल मॉडल से ही क्वेश्चन देगा, ठीक है. सो माय पॉइंट इज जस्ट स्टडी द जियोमॉर्फोलॉजिकल मॉडल, डोंट स्किप इट, ठीक है. See, there are lot of process and lot of thing is going on right now. जैसे मान लो अभी जो प्रोसेस चल रहा है, इसका मतलब वो प्रोसेस पास्ट पे था, बट द थिंग इज द रेट हैज बीन चेंज्ड. दोस रेट हैज बीन डिटरमाइंड बाय द मेनी साइंटिस्ट थ्रू लिटरेचर, है ना. तो लिटरेचर अगर स्टडी करोगे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ नोमेनक्लेचर इज देयर फॉर द क्लासिफाइंग द प्रॉपर. जैसे मान लो थ्योरम, जैसे मैथमेटिक्स पे थ्योरम बोलते हैं, है ना. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, ठीक है. ये हमको पता है, बट यू हैव टू प्रूव दीज थिंग्स थ्रू दिस मॉडल, ठीक है. जैसे मान लीजिए इन्फॉर्मेटिज्म है, द पास्ट प्रोसेस इज जो हो रहा था अभी के लिए भी वो चल रहा है, बट द रेट इज डिफरेंट. How do you scientists know the rate is different or same? For this there are lot of model is there. Through model they can finally conclusion पे पहुंचते हैं, हाँ ये finally same process है और different process. समझ में आया? I don't go into detail, but thing is a model है. There are lot of book or you can go through the literature. But Sabinder Singh, I think Sabinder Singh पे page, sorry not page, chapter 1 or 2, chapter 1 2 पे है. There are lot of history and development, वही chapter है. Yeah, exactly, the history and development part. 1 2 जो geomorphological theorem है वहां पे मिलेगा, जो history, gradually development and evolution कैसे हुआ है, ठीक है. तो वही पे दिया हुआ है. Present is the key to past, ठीक है. तो वो हिस्ट्री है ना, तो वहां पे मॉडल सब दिया होगा. एग्जैक्टली. सो दैट इज द इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री, ठीक है.
या नहीं तो दूसरे बुक है कुछ पेंग वगैरह बुक है, नहीं तो यू कैन फॉलो द थर्नब्यूरी, यू कैन फॉलो देयर आई डोंट समरफील्ड इज देयर, समरफील्ड इज ए रियली गुड बुक। समरफील्ड पे भी चैप्टर नंबर 1 और 2 पे मिलेगा आपको डेफिनेटली। तो पहले चैप्टर पे ही मिलेगा ये, बिकॉज ग्रेजुअली जो डेवलपमेंट हुआ है, जियोमॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो कैसे हुआ है और साइंटिस्ट का ओपिनियन क्या है बेस्ड ऑन दिस सिंपल थिंग्स। Exactly. So that is the things you have to study, है ना? And this is all about the chemical weathering of the limestone. So this is the reaction, right? This is the question has been asked. Then tectonic crustal evolution, supercontinental cycle. Go through this. Heat flow mechanism, internal structure of Earth, solar system, Earth's interior constitution, concept of lithospheric plate, ठीक है, convergent boundary, divergent boundary, seismic wave and the relation between BP and BS, density, जैसे मान लीजिए पूछेगा मेंटल पे और मो पे पी वेव वेलोसिटी और एस वेव वेलोसिटी कितना ग्रेजुएशन पे चेंज हो रहा है, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, ठीक है। और व्हाट इज द पी वेव वेलोसिटी एट द कोर मेंटल बाउंड्री, और व्हाट इज द चेंज इन द पी वेव वेलोसिटी एट द लेमैन डिसकंटिन्यूटी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एंड सेस्मिक पेट्रोलॉजिकल रियोलॉजी ऑफ द रॉक्स एंड फ्लूइड्स, ठीक है, न्यूटनियन एंड नॉट न्यूटनियन लिक्विड, रॉक मैग्नेटिज्म इज रियली इंपॉर्टेंट, पोलैरिटी साइकिल इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ लो, सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ लो, थोड़ा पैलियोमैग्नेटिज्म पढ़ लो, है। ओके, सो दैट इज एनफ फॉर दिस टेक्टोनिक्स एंड क्रस्टल इवोल्यूशन। हॉटस्पॉट पढ़ लो, हॉटस्पॉट इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। वही बोला ना कि कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको अगर कम टाइम है, यू हैव टू बी स्पेसिफिक विद द टॉपिक कि ये चीज पढ़ना है, सिंपल थिंग्स। एंड हिमालय डिफॉर्मेशन एंड Himalaya tectonics अच्छे से पढ़ना, evolution of the Himalaya, right? You can get in the structural geology also question, you can get on the tectonics also, okay? So these are the some of the data, like continental crust का mean thickness क्या है, ठीक है, maximum thickness क्या है, oceanic crust का thickness क्या है, what is the more discontinuity किस किस के बीच है, right? What is the p wave velocity, what is the s wave velocity, what is the increase in the p wave velocity. You can get variety type of question. First read the question properly, ठीक है। इंक्रीज दिया है कि डिक्रीज दिया हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पूछा है, ठीक है। यू हैव टू रीड दोस थिंग्स। एंड डिक्रीज इन द मिनिमम ऑफ पी वेव वेलोसिटी, एस वेव वेलोसिटी, ठीक है। सो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। सो दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चन। जैसे मान लो ये प्लेट बाउंड्री से पूछा है कि a zone where complex package of the oceanic basalt and intensely deformed sediment are found associated with the trench is generally called, ठीक है। and sedimentary basin is really important, ठीक है। ये geomagnetism से पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, Euler pole concept. So you can get a variety type of question, but try to finish first, जितना आपको पूछ सकता है उतना पढ़। Then talk about mineralogy. Mineralogy असाइन है, लेकिन I have to, you have to study the crystallography, ठीक है। crystal symmetry पढ़ लिए, Miller indices पढ़ लिए, ठीक है। So and the physical properties of the mineral is important. Physical properties, optical properties of mineral is important, ठीक है। optical properties पे those like refraction, polarization, plesiorism, ठीक है, sign of elongation, interference figure. Interference figure is not that much important, but you have to study. And फिजिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेजर मिनरल, ओलिविन, गार्नेट हो गया, ठीक है, Al2SiO5 हो गया, पैराक्सिन हो गया, एम्फीबोल हो गया, ठीक है। क्वार्ज स्पेसिफिकली अच्छे से पढ़ना, क्वार्ज स्पिनियल ग्रूव इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड टाइम हुआ तो ब्रैग्स लॉ वगैरह देख लेना। ब्रैग्स लॉ इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। एंड सॉलिड सॉल्यूशन पार्ट, एक सॉल्यूशन पार्ट कुछ भी दे सकता है। 32 क्लास से मैच द फॉलोइंग दे सकता है, ठीक है। नहीं तो पूछ सकता है सपोज 3/m 2 बार कौन सा क्लास है, और 4/m 2/m कौन सा क्लास है। नहीं तो ऑपोजिट वे पे पूछ सकता है डाई हेक्सागोनल, डाई पिरामिडल, बताओ इनमें से कौन सा है।
ठीक है, you can get variety type of question out of this. Any doubt till now? So these are the some of the question. जैसे मान लो कॉमन मिनरल एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर, क्वार्ज क्या दिखाएगा, ठीक है, गार्नेट क्या दिखाएगा, कैल्साइट क्या दिखाएगा, एंस्टोटेट क्या दिखाएगा. So this is the optical properties, optical sign, right, determination, and these are the some of the physical properties of the mineral. प्ले ऑफ कॉलर यू हैव टू नो, ओपल्सेंस क्या है, इरिडेसेंस क्या है. इस साल भी आया था ना एक क्वेश्चन लाइक लैब्राडोराइट व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इज शोइंग, वेदर इट इज फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस और इरिडेसेंस और लैब्राडोरेसेंस, है ना. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेट वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है. सो दिस इज आल्सो लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल, ओके. एंड दिस इज फ्रॉम द क्रिस्टलोग्राफी. आई हैव अटैच्ड सम ऑफ द क्वेश्चन, क्लियर. So then igneous, मैं जितना igneous पढ़ाया हूँ that is more enough. Please go through this my video, that is enough. Like जो मैं discuss किया हूँ completely in a detail manner. UPSC, GSI, prelims के लिए part 1 जो video है that is most important part, because in that part I have explained the like mental reservoir part, ठीक है. सो मेडोसिनिक रिवर्सल क्या होता है, एनरिच्ड मेंटल क्या होता है, डिप्लीटेड मेंटल क्या होता है, those things will definitely come. And most important part is this part, you have to know the petrogenesis of the alkaline rock, carbonatite, kimberlite, sosonite, lamproite, lamprophyre, है ना. And now the trend has been changed, mental metasomatism से क्वेश्चन पूछता है gradually. And like magma पढ़ लिए थोड़ा, then igneous classification वगैरह पढ़ लिए, structure texture is really important for this, and slightly you can get application of the binary and ternary phase diagram से question लगभग एक शायद तो आ सकता है, नहीं तो नहीं. Major you have to study the texture, structure part, petrogenesis of the alkaline rock. This is most important. And the magma, typically magma viscosity, what are the different type of properties of magma you have to know, and their evolution pattern. Any doubt till now? Any doubt you can ask anytime. I don't exactly understand your question. These are the alkaline rocks, right? What is the meaning of the alkaline rock? Depending upon the alkali content, you only find whether the Na2O content will be the higher side or K2O content will be higher side. Not only the alkaline rock, मतलब ये नहीं है कि only alkali mineral are present. These are the associate mineral, right? You can get also the different type of mafic mineral also, depending upon the composition and the percentage, और दैट इज द वेट परसेंटेज, कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है. बेस्ड ऑन दैट देयर आर लॉट ऑफ क्लासिफिकेशन. जैसे कार्बोनेटेड बोले ना, नाइट्रोकार्बोनेटेड इज देयर. सपोज नाइट्रोकार्बोनेटेड पे आपका Na2O कंटेंट ज्यादा होगा, सिंपल थिंग्स, ग्रेटर देन L2O3 एंड दोस K2O. सो बेस्ड अपॉन द व्हाट इज द वेट परसेंटेज ऑफ द मिनरल एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर रॉक. ओके, क्लियर. ओके, सो यही क्वेश्चन है सिंपल. ये क्वेश्चन बताओ, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट द यूटेक्टिक पॉइंट Cl2SiO2 and CmgSi2O6. सिंपल. एंड मैं ये क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, सिंपल बताओ, एनीवन. सिंपल, यूटेक्टिक पॉइंट पे डिग्री, what do you mean by maybe? Degree of freedom definitely 0 at eutectic point, ठीक है, you know right. यहाँ पे देखो अंडर आइसोबैरिक कंडीशन दिया हुआ है, that means you have to apply the condensed phase rule. P plus F will be C plus 1. Simple. Am I right or wrong? So these are the two component here, plus 1. How many phase are there at the eutectic point? These phase will definitely there and one liquid phase is there. Suppose मान लो यहाँ ये लिक्विड तो कूल ग्रेजुअली हो के आ रहा है ना, ये सुनो,
So at this particular utility point, liquid will stable or no? Liquid is also there, right? Yes or no? ये तो दोनों फेज डेफिनेटली प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, बट along with that definitely liquid will be there. Simple. So phase will be 3. So degree of freedom is 0. Simple. Am I right or wrong? इसी साल एक क्वेश्चन आया था सिंपल. In my class I have like given many different type of phase rule numerical. I think this is from the, yeah, this is, I think this is the 2023. Okay, let me see that question. कहाँ गया है? Yeah, exactly this question. This year this question. बताओ. बताओ क्या होगा, कैसे? Any other answer or any other take on this? I need the explanation, not the answer. अगर 2 बता रहे हो तो why 2? Why not 1? Why not 0? Why not 3? Simple things. Intensive variable are not the degree of freedom. You know the Gibbs phase rule. P plus F will be C plus 2. Am I right or wrong? Gibbs phase rule. Let me just अच्छे से समझो. This is the concept. Actually UPSC GSI ऐसे फ्रेम नहीं करना चाहिए था, because like people may get confused. Gibbs phase rule यही है, P plus F will be the C plus 2. But in the condensed phase rule, or usually in the phase diagram, we normally use P plus F equal to C plus 1. What is the exact difference between these two? इसको बोलते हैं आइसोबैरिक कंडीशन, और लाइक इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फेज रूल. इन द कंडेंस्ड फेज रूल, आइसोबैरिक मतलब क्या है? प्रेशर इज कांस्टेंट. am I right or wrong? So in that particular condition the pressure is constant. जब भी आप फेज डायग्राम पढ़ोगे ना, ऑलवेज सी प्रेशर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन दिया होगा. So that means this is the phase diagram of isobaric condition. So ये जो 1 और 2 है, this is called intensive variable. ये pressure temperature is not in like a degree of freedom. F is the degree of freedom, right? Am I right or wrong? आपको समझ में आ रहा है? This is a really nice question and tricky question, and also this is not the right framing question. ऐसे नहीं पूछना चाहिए था, राइट? बट बेस्ड ऑन दिस यू कैन से कि हाँ ये 2 होगा. क्यों 2 होगा? बिकॉज P plus F will be C plus 2. ये जो 2 है ना, दिस इज प्रेशर एंड टेम्परेचर. ये जो दिया हुआ है, इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कंसिडर्ड ओनली इंटेंसिव वेरिएबल, दैट मीन्स 2. आपको क्या पूछा है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? दैट मीन्स F पूछा है. सो F विल बी C plus 2 minus फेज. एम आई राइट और रॉन्ग? सिंपल थिंग्स. आप सबको समझ में आ रहा है? और एनी डाउट यू कैन आस्क. नो डाउट? यस, नो, मे बी. ओके, सो ये 2 है प्रेशर और टेम्परेचर. ये गिवन है इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कंसिडर्ड एज ओनली इंटेंसिव वेरिएबल. दीज 2 आर इंटेंसिव वेरिएबल. व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिव वेरिएबल? टेल मी, एनीवन? No, that is not intensive variable. Intensive variable are those which doesn't depend upon the mass quantity. Exactly, the mass of the body.
or mass quantity. Extensive variable are those which depend upon the volume or mass of the body. ठीक है? So now that is called the intensive and extensive property. So pressure, temperature are the intensive parameter. ये हो गया 2. इसलिए so हमको पता करना है कंपोनेंट कितना है, फेज कितना है, कितना है बताओ, कैसे पता चलेगा बताओ, anyone? Phi is 2. Then if the component equal to P, what do you mean by P? P is the number of phases, right? Number of phases, and C is number of component. Am I right or wrong? Simple things. So अगर C P के बराबर होगा, if the C will be equal to P, then degree of freedom will be 2. Am I right or wrong? Yes or no? तो हमको तो पता नहीं है ना कंपोनेंट कितना है, फेज कितना है, कैसे पता चलेगा? Then for that here it is given a single line. What degree of freedom can be ascribed to a particular zone? So this is really important for the identification of the number of component and the number of phases. Simple things. जैसे मान लो क्लोराइड जोन सुने हो कि नहीं, बायोटाइट जोन सुने हो कि नहीं. Suppose these are the progressive chloride, biotite, garnet. ठीक है? This is the increasing metamorphism. Yes or no? ये क्लोराइड जोन है. Yes or no? इसको क्या बोलते हैं? आइसोग्राड, राइट? आपको पता है yes or no? Any doubt till now? So in that chloride zone only chloride will stable or biotite will stable? बताओ. In that chloride zone only chloride will stable or not? Tell me. Only chloride is stable, right? But along this boundary or along this isograd where there will be the reaction taking place or where the chloride will convert it to the biotite, along that isograd chloride and biotite will both stable. Yes or no? So chloride zone पे chloride stable रहेगा. Yes or no? So phase will be 1 and component will be 1. I am not like giving to broad terms कि phase कैसे calculate करना है, component कैसे calculate करना है, ये मैं सारे discuss कर चुका हूँ already. I'll like giving in detail in the near future video also. ठीक है? So in that chloride zone, chloride will only stable. So number of phase will be 1, component will be 1. Simple. So component phase cancel हो गया. कितना बचा? Degree of freedom will be 2, right? So 2 will be the right answer. Clear? और है? मैं अभी डिस्कस किया था. Who is asking? जियोलॉजी वाला. What is the exact name of you? क्या नाम? Okay. So extensive variable अभी बताया ना, intensive variable and extensive variable. Intensive variable are those variable which doesn't depend upon the mass of the body. ठीक है? That is pressure and temperature. Extensive variable are those which depend upon the mass. जैसे entropy हो गया. It depends upon the mass, right? So entropy is a volumetric property or like extensive property. Clear or no? ये geochemistry में पढ़ा होगा. And simple things always remember, if the phase will be the 1, this is called univariant. Univariant line. Sorry, degree of freedom. Sorry. F will be 1, that means univariant. If F will be 2, it is called divariant. Divariant field. Okay? If the degree of freedom will be 0, then क्या बोलेंगे बताओ? Invariant point. This is not applicable for the igneous petrology. ठीक है? This is only applicable for the metamorphic petrology, because if you go to the phase diagram, ठीक है, ये फील्ड पे तो दोनों फेज एग्जिस्ट करेगा. सपोज A+ liquid is there,
इफ यू कैलकुलेट देन डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही आएगा, देन ये तो जोन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे एक आएगा? दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द मेटामॉर्फिक, ऑलवेज रिमेंबर दिस. Just let me add some, let me, yeah. कहाँ से लेक्चर कहाँ जा रहा है, ठीक है? Just let me add. ठीक है, याद रखना ये हमेशा. If the degree of freedom will be 1, it is called, क्या बोले मैं अभी, univariant line. If the degree of freedom will be 2, that means divariant field. Clear? If the degree of freedom will be 0, then it is called the invariant point. ठीक है, जैसे मान लो अभी दिखा रहा हूं, एंडालुसाइड सिलिमेनाइट डायग्राम याद है ना? दिस इज कॉल्ड काइनेट फील्ड, यस और नो? दिस इज कॉल्ड एंडालुसाइड एंड दिस इज कॉल्ड सिलिमेनाइट. ये जो जोन है, हियर द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 2. along this line degree of freedom will be 1. along this point degree of freedom will be 0. clear or no? any doubt? अभी जितना भी क्वेश्चन आएगा whether this will tell at this point, ठीक है? और will tell कि suppose काइनाइट सिलिमेनाइट रिएक्शन हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा. अगर suppose the काइनाइट gives rise to सिलिमेनाइट, ठीक है, along the isograd, what is the degree of freedom? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. आइसोग्राड मतलब क्या है? So this is the line between the kainite and sillimanite stability field. Am I right or wrong? So degree of freedom. So along this line, this is the line where the kainite will give rise to sillimanite. Along this line, both kainite will stable and sillimanite will stable. ठीक है? So P plus F will be C plus 2. Am I right or wrong? Component कितना है? Al2SiO5. एक ही कंपोनेंट है, सो कंपोनेंट विल बी 1, फेज विल बी 2, सो 2 plus 1 plus 2 माइनस फेज विल बी 2, काइनेट एंड सिलिमेनाइट. सो कितना हो गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1. एम आई राइट और रॉन्ग? किसको समझ में नहीं आया? ट्राइवेरिएंट पॉइंट ऑल्सो स्टेबल, हाँ, जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3. You can, but it is not like coming frequently. I don't hear much about this trivariant field. कहाँ पे आएगा? अगर trivariant field आएगा, then the phase will be 4, right? There are lot of phases existing. मैं generally नहीं सुना हूँ, but degree of freedom will be 3. ठीक है? Okay. ये अलग कभी डिस्कस करेंगे. Let me that. कहाँ गया वो? ओके, एनी डाउट टिल नाउ? क्या समझ में आ रहा है? सारे कुछ क्लियर ना? लेट्स टॉक अबाउट सेडिमेंट्री जियोलॉजी. ठीक है, टेक्सचर अच्छे से पढ़ के जाओ. स्ट्रक्चर, जैसे सेडिमेंट्री टेक्सचर पे ग्रेन साइज, राउंडनेस, पेरिसिटी, सेफ, ठीक है, फैब्रिक एनालिसिस, ग्रेन साइज एनालिसिस, यू हैव टू स्टडी. स्ट्रक्चर पढ़ के जाओ. दीज आर द रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक. सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन फ्लूइड, सेडिमेंट ग्रेविटी फ्लोज इज देयर, लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर अच्छे से पढ़ के जाओ, फ्रॉड नंबर एंड ग्रेन एनट्रैपमेंट एंड हुक-स्ट्रोक डायग्राम. ठीक है, ये अच्छे से पढ़ना. एंड मोस्ट दिस कार्बोनेट डाइजेनेसिस अच्छे पढ़ना, कार्बोनेट प्लेटफॉर्म, एंड थोड़ा बहुत टाइम मिले तो सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी. दिस इज ऑल अबाउट लाइक सिलेबस. You can get this type of question. ठीक है, जैसे ये मान लो डिफरेंस बिटवीन सिलिक्लास्टिक एंड कार्बोनेट सेडिमेंट. ठीक है, ये सेडिमेंटरी टेक्सचर से आया है क्वेश्चन. क्लियर? मेटामॉर्फिक, देखो मेटामॉर्फिक क्या पढ़ना है आपको? सिंपल थिंग्स. स्कैन के बारे में अच्छे से पढ़ो, मेटामॉर्फिक रिएक्शन अच्छे से पढ़ो, मेटामॉर्फिक फेसिस अच्छे से पढ़ो, मेटामॉर्फिक जोन एंड एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म. एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म इतना काफी है, मोर देन एनफ. ठीक है, जैसे मान लो दिस आर व्हिच ऑफ द अमंग फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेटामॉर्फिज्म ऑफ लोकल एक्सटेंट.
ठीक है, नॉट द रीजनल एक्सटेंट. दिस इज द एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म क्वेश्चन. ठीक है, स्नोबॉल गार्नेट, दिस इज द फ्रॉम द टेक्सचर पार्ट, मेटामॉर्फिक टेक्सचर, लाइक रीड अबाउट porphyroblast. एंड these आर द, ये क्वेश्चन पूछा था, मॉस्कोवाइट ब्रेकडाउन रिएक्शन. तो दिस इज फ्रॉम द मेटामॉर्फिक रिएक्शन. ठीक है, दिस इज नॉट गिवन इन द जीएसआई प्रीलिम्स बट दे आस्क अबाउट दिस. ठीक है, एंड दिस प्रोसेसेस यू कैन गेट. ठीक है, मेटामॉर्फिक रिएक्शन, चूज द कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा इनकरेक्ट होगा. ठीक है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, सिंपल थिंग्स, मोह सर्कल अच्छे से पढ़ो. स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस स्ट्रेन डिफॉर्मेशन, जैसे इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दैट मीन्स द रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स. ठीक है, एंड बी रूल थोड़ा बहुत पढ़ लो, वीएस रूल, एंड फोल्ड, फोल्यूशन लिनिएशन एंड जॉइंट. ये गो थ्रू करना. जॉइंट, प्लीज गो थ्रू दिस. जॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट. जॉइंट एंड फॉल्ट. Clear or any doubt? So these are the some of the question. You can get such type of question. Stratigraphy कोई fix नहीं है. You have to go through these all those things. Paleozoic important है, Spiti Kashmir. ठीक है, Gondwana important है, Cenozoic में असम, गढ़वाल हिमालय, and Shivalik. These are the really important. ठीक है. So these are from the Bindian stratigraphy question. This is Alvar Rajab group. ठीक है, स्ट्रैटिग्राफी कोई बता नहीं सकता, बट यू हैव टू स्टडी लिटिल बिट अबाउट पैलियोजोइक सक्सेशन, सेनोजोइक सक्सेशन, लाइक शिवालिक हो गया, असम हो गया, बिकॉज असम पे लॉट ऑफ पेट्रोलिफेरस बेसिन इज देयर, है ना, एंड लाइक ऑयल एक्सप्लोरेशन इज हैपनिंग देयर. सो यू हैव टू स्टडी दोस थिंग्स. इंपॉर्टेंट. पैलेंटोलॉजी भी कोई बता नहीं सकता, बट थिंग इज दिस पार्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज देयर, इंपॉर्टेंट. सेफालोपोड इंपॉर्टेंट है. ठीक है, माइक्रोफोसल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. गोंडवाना फ्लोरा एंड फौना, इवोल्यूशन ऑफ द इक्विडे एंड होमिडे ह्यूमन, देन इक्नोफोसिल्स. इक्नोफोसिल इज, इसको डबल स्टार दो, इक्नोफोसिल्स इज रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, माइक्रोफोसिल, माइक्रोपैलेंटोलॉजी यू कैन स्किप, but ostracod, cephalopod, trilobite is really important. Cephalopod suture is important, but fix नहीं है ना, like also trend is changing right now, so you can get like paleobotany question भी मिल सकता है, paleogeography question मिल सकता है आपको. so there is no fixed rule. this type of question, जैसे ये इक्नोफेसिस का क्वेश्चन है, please go through the इक्नोलॉजी part, इक्नोफेसिस. ठीक है, रिमोट सेंसिंग, सिंपल थिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ना, प्लेटफॉर्म, सेंसर, एरियल फोटोग्राफी, यू कैन गेट द लाइक न्यूमेरिकल ऑल्सो. ठीक है, एंड साइलेंट फीचर अबाउट दिस टाइप ऑफ सेंसर, रिसोर्स सेट, स्पॉट, लैंडसैट, एरेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना. इमेज इंटरप्रिटेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन, यू कैन गेट सच क्वेश्चन ऑल्सो. देखो ये न्यूमेरिकल आया ना, this has been asked in the previous last Ashtam geologist question. NDVA, calculate the NDVA value, है ना, and sensor and resolution, spectral resolution, spatial resolution, those are really important. Geochemistry, like some thermodynamics, chemical composition and characteristic of atmosphere, lithosphere, hydrosphere, these are the really important topic. And radiogenic isotope is really important topic. Radiogenic isotope, like different type of method, RBSR method, SMND method, these are the really important. Okay, you can get this type of question. And also read about the periodic table and बताओ, RE pattern is also important. Any doubt till now? Mineral exploration stage, read about the drilling method. There are a lot of book.
lot of, like you can go through the Casey Misra also, like William White also, a lot of book is there. Casey Misra, I personally like. White is also really good book. You can go through this. बहुत सारे बुक है, लाइक बुक डिपेंड अपॉन यू. जो भी बोलते हैं कि टॉप ऑफ स्टॉक सुनते हैं, आई फॉलो दिस बुक, बट मे बी यू कैन नॉट लाइक दिस बुक. मैं जो लाइक करूं इसका मतलब ये नहीं कि देयर वे ऑफ अप्रोचिंग द थ्योरम और लिटरेचर इज डिफरेंट, राइट? आई पर्सनली लाइक द विलियम व्हाइट एंड कैसी मिश्रा. maybe you cannot like match the frequency of the professor or like writer. ठीक है, तो मेरा जो मैं जो पढ़ रहा हूँ जिस बुक से, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी अच्छा लगे. doesn't mean that. एंड व्हाइट पे थर्मोडायनेमिक्स दिया हुआ है, वहां पे भी अच्छा दिया हुआ है. व्हाइट पे रेडियोजेनिक आइसोटोपी दिया हुआ है, आइसोटोप जियोलॉजी वहां पे भी अच्छा दिया हुआ है. यू कैन गो थ्रू दिस. देयर आर लॉट ऑफ बुक. आई पर्सनली लाइक डोंट गिव सजेशन अबाउट बुक की कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, बट डिपेंड अपॉन यू कि आपको किस ऑथर और क्या किस प्रोफेसर राइटर का फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है लिटरेचर का. ठीक है. सो मिनरल एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग मेथड इज रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है. सैम्पलिंग पैटर्न इज रियली इंपॉर्टेंट. जियोकेमिकल सर्वे इज इंपॉर्टेंट. मोबिलिटी, डिस्पर्सन एलिमेंट. ठीक है. सो दोज टर्मिनोलॉजी इज रियली इंपॉर्टेंट. सम पार्ट जियोफिजिकल मेथड, जैसे मान लो जो क्रोमाइट डिपॉजिट, किस मेथड पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं whether there will be the chromite deposit or not, like inference कर सकते हैं. Slightly read about that geochemical exploration, slightly pitting, trenching and slightly mining terminology, जैसे adit क्या हो गया, ठीक है, shaft क्या है. So read about those things. This is really important. और रिजर्व एस्टिमेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. मे बी यू कैन इन द मैक्सिमम पॉसिबल वे यू कैन गेट फ्रॉम द और रिजर्व. और रिजर्व क्या है और रिसोर्स क्या है, यू कैन गेट द वेराइटी टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, यू कैन गेट सी दिस टाइप ऑफ, जैसे मान लो पर्टिकुलर प्लेस है, जैसे वीक जोन है, सॉइल इज वेरी वीक इन दैट पर्टिकुलर जोन, व्हिच मेथड इज सुटेबल, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है. जैसे रोटरी मेथड हो गया, केबल टूल मेथड हो गया और एयर रोटरी टेक्निक हो गया. यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके. So coming to economic geology, simple, BMS अच्छे से पढ़ो. BMS डिपॉजिट, SETEX डिपॉजिट, बेसिकली हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट, सेडिमेंट्री डिपॉजिट इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड कोल पेट्रोलियम थोड़ा बहुत पढ़ लो. ठीक है. दिस इज द वे एंड दे कैन आस्क. इंजीनियरिंग जियोलॉजी सेम थिंग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इज देयर, लाइक न्यूमेरिकल आया था प्रीवियस साल, बट जैसे मान लीजिए आरक्यूडी हो गया, आरएमआर हो गया, दोस टाइप ऑफ क्वालिटी. ठीक है. द क्वालिटी पैरामीटर और द लाइक पैरामीटर फॉर द कैलकुलेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कोर सैंपल. यस, इज देयर. मिनरल एक्सप्लोरेशन, मून इज देयर. मून इज द रियली गुड बुक, आई थिंक. yes, moon is good book and you can follow the one book is there, I don't exactly remember, is in I think PVZN mines and Jawhar mines पे थे वो. हल्दर SK हल्दर is really good book. मैं वही ना, मैं ज्यादा बुक सजेशन नहीं करता हूँ, because like any book is a really good book, but thing is you have to match the frequency of the author. Rule is this. ध्यान पढ़ लो थोड़ा इंजीनियरिंग जियोलॉजी पे, है ना. एंड आरक्यूडी, आरएमआर प्रॉपर्टी, जॉइंट सेट नंबर, वेलोसिटी कैलकुलेशन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग एंड लॉट ऑफ पैरामीटर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कोर सैंपल. ओके. सो दोस थिंग यू कैन स्टडी. टनल हो गया, टनल से क्वेश्चन सपोज पूछ सकता है कि टनल इस डायरेक्शन पे कंस्ट्रक्ट एक हो रहा है, इसका डीप डायरेक्शन ऐसा है, एंड सपोज बेड इस डायरेक्शन पे डीप कर रहा है, देन अमंग दिस कौन सा सुइटेबल एनवायरमेंट है, ठीक है, फॉर द लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ द टनल. whether one is true, only one is true, only one and two, you can get a different type of question like this only. ठीक है. So this is Brazilian test is used to determine, these are the tests used in the normally lab for the identification of the strength of the rock. जैसे मान लीजिए टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, और लाइक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, और शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं. सो दीज आर द ऑल द लाइक स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द नॉर्मली लैब
ठीक है, फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द रॉक, ठीक है, रॉक मास। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन आया था, देखो यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर पूछा है, एंड पोरोसिटी, वॉइड रेशियो। सो दीज आर द इंजीनियरिंग, बेसिक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक एंड सॉइल, जैसे वाटर सैचुरेशन हो गया, ठीक है, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट engineering properties of the rock and soil you have to study, right? Environmental geology, simple things, जो ट्रेंड हो रहा है, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक इज अ नेचुरल हैजर्ड, ठीक है, प्लीज गो थ्रू दिस बिकॉज यूपीएससी इज आस्किंग सच ए वे which is more applied things in the daily life, जैसे वोल्केनिज्म हो रहा है, वोल्केनिज्म इज अ नेचुरल हैजर्ड, राइट? earthquake is a natural hazard, tsunami is a natural hazard, flood, river, you can get such question in the environment geology part, greenhouse gases and effect. So these are the important like day to day, इसको बोलते हैं डे टू डे जो नेचुरल हैजर्ड हो रहा है इन रियल लाइफ, फ्रॉम दिस पार्ट यू कैन गेट सच क्वेश्चन, ठीक है। जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है, जैसे यूरेनियम एक्सप्लोरेशन हो रहा है ना, व्हाट आर द वेस्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड for the proper waste disposal in the uranium mines or uranium explosion. Coastal hazard जो हो रहा है, सुनामी हो रहा है ना, so these are really important. You can get this type of question like match the following or like tsunami, इनमें से क्या क्या properties शो करता है, whether these are the large submarine earthquake, underwater water landslide, and also you can get the match the following also, है ना, hydrometeorological hazard, biological hazard, इनमें से क्या है you can get, also like some part of meteorology you can get, ठीक है। earthquake geology, seismotectonics, like basic seismology, seismic reflection technique, seismic refraction technique, study about body wave, study about surface wave, study about longitudinal transverse wave, seismic velocity of rocks, है ना, different type of seismometer is using, right? जियोफोन क्या होता है, हाइड्रोफोन क्या होता है, प्लीज गो थ्रू दिस, डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक एंड लाइक सेस्मिक फेजेस, सेस्मिक सोर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नीट्यूड स्केल, ठीक है, इंटेंसिटी स्केल। सो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट एंड नोमेनक्लेचर ऑफ सेस्मिक फेजेस, पी के आई के पी, इसका मतलब क्या है, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू दिस इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। माय पेन इज नॉट वर्किंग, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेट फॉर द अर्थक्वेक seismotectonics part, okay? And marine geology, normally oceanography, study about the properties of sea, properties of the water, है ना, ocean morphology, ठीक है, सी बॉटम टोपोग्राफी, जैसे एबेसल प्लेन में क्या क्या होता है, उसका स्लोप क्या होता है, स्टडी अबाउट सेल्फ स्लोप, सबमरीन कैनिंग क्या होता है, ओशन बेसिन फ्लो नॉर्मली, ठीक है, बॉटम टोपोग्राफी, रीड अबाउट दोस प्रॉपर्टी। So this is all about, you can get a different type of question from the like marine part. Geoinformatics, same basic GIS, raster method, vector method, digital elevation model क्या होता है, ठीक है, TIN model क्या होता है, study about those things, layer topology, ठीक है, thematic layer. So this type of question you can get such. Hydrogeology, simple things, जो GSI prelims में है उसको पढ़ लो अच्छे से। Apart from that, also you can get the different type of question, जैसे ग्राउंड वाटर फ्लो हो गया, ठीक है, उसका इक्वेशन क्या है, थेसिस इक्वेशन क्या है, हाउ डू यू कैलकुलेट द ट्रांसमिसिबिलिटी फ्रॉम द थेसिस इक्वेशन, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन गेट लॉट ऑफ क्वेश्चन। एंड ग्राउंड वाटर क्वालिटी अच्छे से पढ़ो, ठीक है, जैसे सार हो गया, ठीक है, सोडियम परसेंटेज हो गया, हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्राउंड वाटर कंपोजिशन एंड यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन एंड दोस टाइप ऑफ कैलकुलेशन, एंड ऑल्सो न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे मान लो रेनॉल्ड्स नंबर इस साल पूछा था, है ना, डायरेक्ट लिटरेचर पूछा था कि इसका फॉर्मूले क्या है, इनर सेल्फ फोर्स बाय विस्कस फोर्स, दैट वी नो लाइक रो बाय डी बाय म्यू, राइट। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं कि सपोज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इतना है, वेलोसिटी इतना है, डायमीटर ऑफ द इतना है, तो फाइनली फाइंड द रेनॉल्ड्स नंबर, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। So this is all about the broad terms and like how do you approach and what to study in next time. Any doubt till now, or like properly understand all those details? You can ask. If you have any question, please feel free to ask. I will upload, like I will
ओके, मतलब तुम टर्मिनोलॉजी पूछ रहे हो, रिमोट सेंसिंग क्या है, जीआईएस क्या है, what is the exact meaning of the remote sensing, what do you know the definition of the remote sensing? सिंपल थिंग्स, मैं एक लैंग्वेज पे समझा रहा हूँ आपको। आपको खाना खाना है, ठीक है, आप गए मार्केट से आलू गोभी ले आए रॉ, बट यू हैव टू प्रोसेस दोज थिंग्स फॉर द टेकिंग ऑफ द फूड, राइट? यस और नो? जो आप मार्केट से लाए वो रिमोट सेंसिंग है, जो प्रोसेस किए वो जीआईएस है। सिंपल। जीआईएस टेल्स अबाउट मोर डिटेल, geoinformatics, it will give you the information of those coordinates, but remote sensing just sense the data, okay, समझ लिए? So this is the basic difference between the remote sensing and GIS. GIS का काम है प्रोसेस करना, रिमोट सेंसिंग के काम है डाटा लेना। रिमोट सेंसिंग will not process the data, ठीक है, but in the GIS will be the give the broader term, रिमोट सेंसिंग एक छोटा टर्म है, ठीक है, उसको डाटा को प्रोसेस करना पड़ता है, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीआईएस। क्लियर? और एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट और एनीथिंग टू बी आस्क्ड, प्लीज आस्क मी, ठीक है? नहीं तो मुझे कॉल कर देना, नहीं तो मुझे मेल कर देना, डीप ड्राइव्स 1 पे ऑलरेडी गिवन द मेल आईडी इन द यूट्यूब चैनल, प्लीज गो थ्रू दिस। I only request please like the video, like student like नहीं करते हैं, and those type of value will not give, okay? Any doubt till now? Hope so you like the all those videos in the YouTube, or any doubt? मैं डिटेल में बताया वही लास्ट 30 days प्रिपरेशन है कि वी हैव टू बी स्पेसिफिक विद योर टॉपिक। टॉपिक 19 है, राइट? टॉपिक इज 19, बट यू हैव टू स्पेसिफिक विद द टॉपिक कि कितना आपको 30 days पे कंप्लीट करना है। नॉट लाइक फुल सिलेबस। आपको दिल्ली जाना है, लेकिन सपोज यूपी तक आपको गाड़ी मिल रहा है, भाई यूपी तक चले जाओ ना, उसके बाद यूपी से तुम लिफ्ट ले लेना, नहीं तो बस पकड़ लेना, कुछ भी कर लेना। क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपको न्यू दिल्ली जाना है, लेकिन आपको यूपी तक गाड़ी मिल रहा है, तो यूपी तक चले जाओ। सिंपल थिंग्स। सो 19 टॉपिक इज देयर, यू हैव टू रीड एटलीस्ट 13 और 12 टॉपिक। उसको छोड़ो ना, पैलेंडोलॉजी छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? यू हैव टू सिक्योर 200 प्लस मार्क्स। सिंपल थिंग इज दैट। आपको 300 में से 300 तो नहीं जाएगा ना, सिंपल थिंग। कटअप भी नहीं जाएगा इतना, और टॉपर भी नहीं लाएगा उतना। टॉपर भी छोड़ेगा और कटअप भी मतलब जो लास्ट स्टूडेंट है जो कटअप सिंपल क्लियर करेगा, उसका भी मतलब 300 मार्क नहीं रहेगा। सो व्हाई यू वरी? सिंपल थिंग्स। फोकस ओनली दोज टॉपिक व्हिच इज मैक्सिमम इंपोर्टेंस, और जो तुम कम टाइम में कर सकते हो। सिंपल थिंग्स। रीड ओनली पर्टिकुलर टॉपिक, जितना पढ़ के जाओ उतना प्रोजेक्ट करके आओ। सपोज आप 150 मार्क का क्वेश्चन प्रिपेयर किए हो, सो 150 मार्क अच्छे से प्रेजेंट करके आओ। दैट इज द मोटिव। आप 200 मार्क पढ़ के जाओ और 300 मार्क फुल पढ़ के जाओ, बट यू आर ओनली सिक्योरिंग 120 110 मार्क, देयर इज नो पॉइंट ऑफ व्यू। सिंपल, जितना पढ़ के जाओ उतना करके आओ। दैट इज द मेन मेंटालिटी एंड मोरालिटी। Okay, any doubt till now? I just want to ask, you want live classes or like a recording on the direct YouTube? Because like there are nobody is joining right now. Okay, not much student is